Good morning student, welcome back in angle and its measurement. आप लोगों को लास्ट डे तक जो भी क्वेश्चंस आए रिगार्डिंग विद द एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, होप आपने वो अच्छे से सॉल्व किए होंगे विदाउट एनी डिफिकल्टीज एंड डाउट. एज आई ऑलरेडी सेड, if any doubt, any difficulty, then without any hesitation ask me on group. Now today we are going to discuss some other type of questions. Those are based on again the angle, degree, length of an arc. But before solving all these questions, just recall yourself. आप रिकॉल क्या करिएगा बेटा? तो एंगल मेजर करने के कितने तरीके? सो देयर आर द टू डिफरेंट मेथड्स टू मेजर द एंगल. नंबर वन, that is the sexagesimal system, and when we are in the sexagesimal system, angle measured in a degree. Good. When we are in a circular system, so angle measured in radian. And then convert the one system into the another system. So for this conversion, we are using degree converted into radian multiplying by pi by 180, and to convert radian into degree multiplying by 180 by pi. यहाँ तक के कंसेप्ट क्लियर हो गया. अभी आगे जब बढ़े हम लोगों ने, तो हमें एक नया दौर ऐसे पता चला कि लेंथ ऑफ एन आर्क नाम का एक कंसेप्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेंथ ऑफ एन आर्क is represented by the capital S, and we having the formula S is equal to R into theta. When we are moving a step ahead, हमें ये मिला the area of sector, and what is the exact formula for the area of sector is 1 by 2 R square theta. Okay. Now यही सब यूज करते हुए सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, and our question is find the area of sector of circle which subtends an angle of 120 degree at the center if the radius of the circle is 6 centimeter. You can again read this. Now, exactly what values are given? So we are given the angle subtended at the center, and as we all know that angle subtended at center is given by the letter theta. This theta is equal to how much is given? So 120 is given. पर हमें ये अब तक क्लियर पता हो गया कि हमें डिग्री मेजरमेंट नहीं चलता. हमें एलर्जी है डिग्री की, इसलिए नहीं बेटा, पर हमें डिग्री मेजरमेंट लेने की 11th में परमिशन नहीं, फॉर्मूला परमिट नहीं कर रहा, इसलिए. सो सबसे पहला हमारा काम बन जाएगा कि हम लोग 120 डिग्री को कन्वर्ट करें. सो कन्वर्ट द डिग्री इनटू रेडियन. इट मींस 120 मल्टीप्लाइंग बाय पाई बाय 180. नाउ दिस मेजरमेंट इज इन द रेडियन फॉर्म. सो इज देयर एनी कार्ड चार्ट? तो एस 0 0. ऐसा कौन सा नंबर का टेबल है जिसमें 12 भी आता है और जिसमें 18 भी आता है? तो 6 2s are 12 and 6 3s are 18. It means we are getting the first term. Theta is equal to 2 pi by 3. Got it बेटा? थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2 pi by 3. Now move on the second part of question. Radius of circle is given. Radius is denoting by the letter R, and this R is equal to 6 centimeter is given, which is our next part. So two values are given. First one is a theta and second one is a R. So we need to find the formula area of sector of circle. Area of sector of circle is given by A is equal to 1 by 2 R square theta. R square theta. So put 1 by 2.
The value of r is equal to 6, so 6 square. The value of theta is equal to 2 pi by 3. All these are value which we are substituting here. Move on the next step. So therefore we are getting the value of A is equal to, which is nothing but the area of circle, 1 by 2. 6 square it is 36 or 6 into 6. So multiplying 6 into 6 into 2 pi by 3. Into कितना ले लिया? 2 pi by 3. Is there any cut chart again? So yes, 2 get cancelled. 3 1s are 3, 3 2s are 6. What exact numbers are left? Say on the numbers. So 1 into 6 into 2 into pi. देखो एक बार फिर से क्या बच गया? 1 into 6 into 2 into pi, which is nothing but the 12 pi. हम लोग क्या ढूंढ रहे थे? तो हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढ रहे थे, और जब हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढ रहे हैं, सो वी हैव द फॉर्मूला स्क्वायर सेंटीमीटर. ए इज इक्वल टू 12 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर. Look at the question, then see the question, write down in your notebook, and we are moved to the next one. Now discussing about the second question. So what exactly given? The area of circle is 81 pi square centimeter. Observe the question. What is exactly given? So first value is area of circle. And what is our formula? So एक एक टर्म को ले लेते बेटा. एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, कितना दिया हुआ है? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 81 पाई. स्क्वायर सेंटीमीटर इज इट्स यूनिट, सो 81 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर. मूव ऑन द सेकंड वन. हमें ढूंढना क्या है? तो फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क. ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क whose subtending angle is. कितना है subtending angle? That is the value of theta is equal to 150 degree. कितनी हो गई? 150 degree. Also the area of its corresponding sector. साथ ही साथ क्या ढूंढ लेना है? area of its corresponding sector. Now let's move. First term is given area of circle. So as per the given area of circle having the formula pi r square, which is nothing but the 18 pi. Okay. Then which values exactly get cancelled? Both sided the pi get cancelled. Then the value of r square is equal to 81. Therefore r is equal to 9. So radius is equal to कितना मिल गया? r. फिर बढ़ते हैं एंगल सबटेंडिंग एट द सेंटर के लिए. तो उसके लिए हमें पता है एंगल किस में होना जरूरी है? रेडियन में. दिया किस में है? तो डिग्री में. फिर हमारा काम बनता है कि हम लोग यहाँ पे जुगाड़ जमा ले. सो 150 मल्टीप्लाइंग बाय पाई बाय 180 हो गया. जैसे ही पाई बाय 180 लिखा गया बेटा, नाउ दिस बिकम्स इन अ radian measurement. So again is there any cut chart? तो yes, 0 0 get cancel. Then किसका टेबल है जिसमें 15 भी आते हैं और 18 भी आते हैं? तो 3 5s are 15 and 3 6s are 18. It means the value of theta is equal to 5 pi by 6. Ready? हमें अभी कितने वैल्यूज मिल गए? So we having the two values. हमारे पास थीटा की भी वैल्यू है, साथ ही साथ हमारे पास आर की भी वैल्यू है. चलो बेटा आगे बढ़ते हैं. सो फर्स्ट हमें ढूंढना था लेंथ ऑफ एन आर्क. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ एन आर्क? सो लेंथ ऑफ एन आर्क which is denoting by the letter S, which has the formula R into theta. According to the question, R is equal to 9, theta is equal to 5 pi by 6, and is there any cut chart? ये यहाँ पे रेडियन नहीं लिखते हो तो भी चलेगा, ठीक है.
सो डोंट बी कंफ्यूज। फिर से देखिए 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 into 5 15. It means length of an arc S is equal to 15 pi by 2 as its length. It has the unit centimeter. So first मिल गया हमें। सेकंड के लिए जब हम लोग बढ़े तो फॉर सॉल्विंग द सेकंड टर्म वी आर यूजिंग द फॉर्मूला फॉर, किसका फॉर्मूला यूज करना था? एरिया ऑफ सेक्टर का। एंड एरिया ऑफ सेक्टर विच इज डिनोटिंग एज ए विच हैज द 1/2 r square theta। ये किसका फॉर्मूला लिख लिया? दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर। नाउ जस्ट पुट अप द वैल्यूज। 1/2 value of r is 9, so 9 square, and value of theta is 5 pi by 6, so यहाँ पे आ गया 5 pi by 6। फिर से एक स्टेप अगर बढ़ा लेते हैं बेटा, so 1/2 9 square 9 again 9 into 5 pi by 6 and check out any cut chart is here। So as my dear student, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, get it my point? So what is left here? Here left 3 into 9 into 5, so 9 5 जा 45, 45 into 3, it's a 135, so answer 135 pi upon 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी जानने की बात कुछ ऐसे है बेटा, यहाँ पे ऐसे जब आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, दिस गिव्स अस ओनली हाफ मार्क, दिस गिव्स अस ओनली हाफ मार्क, एंड दिस वन इज फॉर 1 मार्क एंड दिस वन इज फॉर 1 मार्क। पर याद रखिएगा, शायद ही कोई ये आपको बताएंगे, पर आप जैसे कि डीएसए में सर्वाइव करने वाले हो, सो आपकी हर एक क्वेरी यहाँ पे सॉल्व होने वाली है। मैथमेटिक्स के लिए 2014 ऑनवर्ड हाफ मार्क प्रोविजन नहीं है, तो हमें मिलना अगर रहा तो 1 मार्क मिलेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं मिलेगा। सो कीप इन द माइंड, प्रिपरेशन करते समय ये ध्यान रखना कि जो आधे आधे मार्क के सर्वाइवेंस शुरू है, उसके लिए आप कहीं पे भी छोटी सी भी गलती नहीं करो। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। Now, next question, question number 3. If the perimeter of sector of circle, ध्यान दीजिएगा, किसका पेरीमीटर ढूंढना है? सेक्टर ऑफ द सर्कल कैसा है? Is 4 times the radius of circle. Find the central angle of corresponding sector in the radian। फिर से एक बार क्वेश्चन को लीजिए, क्या बोल रहा क्वेश्चन आपको? क्वेश्चन बोल रहा इफ द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर जहां तक के मेरा नॉलेज है बेटा 10th तक के, कि मुझे इतना पता है, आपने पेरीमीटर इसके पहले भी सीखे हुए हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये सब चीजें आपको नया अगर कुछ यहाँ पे आ गया तो वो है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल। क्या जानते हो आप पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल के बारे में? है कोई हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला? चलो देखते हैं क्या हमारे पास फॉर्मूला है या नहीं। सो सबसे पहला ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। कितना देखे है ये अगर देखे हम लोग, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज हाउ मेनी टाइम्स? तो 4 टाइम्स। किसके 4 टाइम? तो रेडियस ऑफ सर्कल के 4 टाइम। अभी जैसे कि हमें पहले ही पता है, रेडियस हम लोग डिनोट करा लेते बाय द लेटर आर से, ठीक है ना। और अगर ये चौगुना है, 4 टाइम्स बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ 4r। सवाल फिर से वही रहा कि मैम
पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या? तो बेटा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला रहता है डायमीटर प्लस लेंथ ऑफ एन आर्क, या फिर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस प्लस एस इज इक्वल टू 4r। ठीक है, ये प्लस ट्वाइस आर की पोजीशन बदला दो, सो एस इज इक्वल टू 4r माइनस ट्वाइस आर एंड 4r माइनस ट्वाइस आर, सो वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू ट्वाइस आर। वैल्यू समझ में आ गई ना? बढ़ते हैं, हमें ढूंढना क्या है? तो सेंट्रल एंगल। सबसे पहले ये देख लीजिए हमारे पास, दैट इज वी हैव, क्या है हमारे पास? s इज इक्वल टू r इंटू थीटा। दिस इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्मूला। सो देयरफॉर फॉर फाइंडिंग द थीटा वी गेटिंग द सेकंड फॉर्मूला s अपॉन r। गेट इट माय पॉइंट? सो अगर मैंने थीटा लिख लिया s अपॉन r, तो we already have the values of s. Value of s is equal to twice r upon r. Now see clearly r get cancel. It means theta is equal to 2. थीटा क्या है रे बेटा? तो थीटा एंगल है। कहाँ पे सबटेंड हो रहा? तो subtended at the center of circle which is measured in a radian. It means our required answer is theta is equal to 2 pi radian. Get it this? फिर से एक बार इसे ओवरलुक करें। क्या क्या दिया? That is perimeter of sector of circle, radius considering as r, then substituting the formula and accordingly we get our answer. Next question beta, question number 4. What exactly given in the question? A wheel makes 360 revolution in 1 minute. 1 मिनट में चक्का जो है वो कितना घूम रहा? तो 360 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा। ठीक है ना? आपको ढूंढना है थ्रू हाउ मेनी रेडियंस, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकंड, की वो 1 सेकंड में कितने रेडियन कंप्लीट करेगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझो। एक व्हील जो है वो 360 ऐसे फेरे कंप्लीट कर रहा है, इसी को रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ये 360 रिवॉल्यूशन वो कब कंप्लीट करता है? विद इन द 1 मिनट। तो यह अगर 1 मिनट में हो रहा तो 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन करेगा? इतना आसान सा सवाल है बेटा ये, इसको हम लोग उतने ही आसानी से फटाफट सॉल्व कर लेते, निपटा लेते। नाउ सी क्या बोला गया था? हाउ मेनी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड इन अ 1 मिनट? नाउ रिमेंबर 1 मिनट इज नथिंग बट 60 सेकंड्स। सो कितने कर रहा वो? तो 360 कर रहा। अगर 360 कर रहा 1 मिनट में, इसका मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ही मेड इन 1 सेकंड। सो फॉर फाइंडिंग दिस वैल्यू सिंपल है। 360 अगर 60 मिनट में कर रहा तो 1 सेकंड में निकालने के लिए 360 अपॉन 60 which is nothing but the 6. How many revolution? 6 number of revolution. But question asking how many radians? तो angle mode in the 1 revolution, it means this one गोल रानी is of 360 degree, and for the radian conversion 360 degree is nothing but 2 pi. So 2 pi अगर कर रहा वो 1 रिवॉल्यूशन में, तो कितने रिवॉल्यूशन हो रहे 1 सेकंड में? 6 रिवॉल्यूशन हो रहे। इसका मतलब एंगल मूव्ड इन अ 6 रिवॉल्यूशन कितना बन जाएगा बेटा? 6 into 2 pi, it means 12 pi. It's a radian। 1 सेकंड में
कितने रिवॉल्यूशन होने वाले थे? तो 6 रिवॉल्यूशन होने वाले थे। एक रिवॉल्यूशन कितने डिग्री का रहता? तो 360 डिग्री का रहता। इसी का मतलब कितने रेडियन का रहता? तो 2 पाई रेडियन का रहता। एक अगर 2 पाई का है तो 6 कितने के? तो सिंपली आंसर कितना आ गया? 12 पाई रेडियन। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करना? तो -35 डिग्री, 45 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स किस में करना है? तो इनटू रेडियंस में करना। क्या ऐसा कुछ इसके पहले गया था? क्या हम लोगों ने क्लास में किया है? तो हाँ किया है, पर हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा था, कन्वर्ट द डिग्री इनटू डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड। और यहाँ पे पहले से ही डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स देख के है और हमें कन्वर्ट करना है इन द रेडियन। कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी निपटा लेते हैं। चलो पटापटा निपटा लेते हैं इसको। What exact values are given? So given values are, now just wait, before solving this question, हमें पूरा का पूरा आंसर मांग रहा रेडियन में। रेडियन में अगर आंसर मांग रहा, इसका मतलब हमें दिया हुआ पूरा का पूरा आंसर किसमें होना जरूरी है? डिग्री में। अभी चलो छोटी छोटी चीजों को समझते हैं। 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट्स, होता है ना 60 मिनट्स। यानी अगर मेरे पास 2 डिग्री, इसका मतलब मेरे पास 120 मिनट है। मेरे पास 4 डिग्री है, इसका मतलब मेरे पास 240 मिनट है। और हमें पता है कि 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड्स। अगर मैं बोलूं मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है, इसका मतलब मेरे पास 180 सेकंड है बेटा। होगा ना यही कन्वर्शन? इसी का अगर उल्टा, इफ एनीवन आस्क मी ही और शी हैव ओनली 300 सेकंड्स, उसके पास 300 सेकंड्स है, इसका मतलब उसके पास कितने मिनट्स है? नाउ टू फाइंड दिस कन्वर्शन हम लोग इसे डिवाइड बाय करा लेंगे 60, और 300 डिवाइड बाय 60 यानी कितना हो गया? 5। अगर किसी के पास 300 सेकंड है, इसी का मतलब उसके पास सिर्फ कितने मिनट है? तो सिर्फ 5 मिनट है। इफ एनीवन सेज अस किसी के पास 120 मिनट्स है, 120 मिनट्स है, इसी का मतलब उसके पास 2 डिग्री है बेटा, क्योंकि 120/60 आपको आंसर कितना मिल जाएगा? तो हमारा पहला काम बनेगा, हम लोगों के पास जितना भी है उसको डिग्री में कन्वर्ट कराएंगे। धीरे धीरे चलेंगे बेटा। गिवन मेजरमेंट इज, क्या है गिवन मेजरमेंट? -35 डिग्री, देन मूव ऑन द नेक्स्ट वन, 45 मिनट्स एंड देन 30 सेकंड्स है ऐसा कन्वर्शन। यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट्स दैट, ये आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हो। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट्स कर रहा? इंडिकेट्स दैट एंगल मेजर्ड इन, किसमें मेजर्ड हुआ? एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, सिर्फ क्या कि दैट इज नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एंगल मेजर्ड इन विच डायरेक्शन? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आगे बढ़ते हैं, माइनस को जैसे का वैसा ही रहने देते, सो माइनस कीप एज इट इज इन अ ब्रैकेट। 35 डिग्री, दिस इज द फर्स्ट टर्म। 45 मिनट्स मैंने ऑलरेडी क्लियर किया है कि मुझे पूरे के पूरे टर्म्स जो होना वो डिग्री में होना। अब तक के पॉइंट वाले टर्म को हम लोगों ने डिग्री में किया मल्टीप्लाई करके। अभी जब मिनट्स को कन्वर्ट करने की बारी आई तो हम लोग डिवाइड करा लेंगे, यानी 45 डिवाइड बाय 60
तो ये बन गया अभी आपका डिग्री। बात समझे बेटा? उसके बाद आपके पास है 30 सेकंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि आप 30 सेकंड्स को पहले कन्वर्ट करोगे मिनट में, यानी डिवाइडिंग बाय 60 करोगे, और फिर मिनट को कन्वर्ट करोगे इन द डिग्री, तो फिर से एक बार डिवाइड बाय 60, यानी होल डिवाइड बाय कितना हुआ, 2 बार 60। ठीक है ना? वैल्यूज निकालो। 45 upon 60, this minus sign keep as it is, 35 degree plus 45 upon 60 simplified अगर करते हो तो 15 3s are 45 and 15 4s are 60. 3 upon 4 is nothing but the 0.75. It's a degree. आगे बढ़ते हैं बेटा। 3 1s are 3, 3 2s are 60 and 1 upon 120. Just check the answer. 1 upon 120 is 0.0083. It's again in a degree. So now add all these terms. In the rough work, if we are adding all these, it means we are getting 35, 0.75 and 0.0083. It means we are getting our final answer minus 35.7583. It's now degree. किसमें हुआ ये? डिग्री में हुआ। आपका क्वेश्चन है कि आपको दिया हुआ पूरा का पूरा कन्वर्शन किसमें कन्वर्ट करना था, तो रेडियन में कन्वर्ट करना था। रेडियन के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? सो माइनस 35.7583, इसे मल्टीप्लाई करना होगा हमें पाई बाय 180 से। जैसे ही पाई बाय 180 से करा लिए, हमें मिला हमारा रेडियन। काट चाट अगर करो बेटा, टुकड़ों में अगर बांट दो, तो आपको आपका फाइनलाइज आंसर मिलेगा माइनस 0.1987 पाई एंड दिस इज रेडियन। ये किसका कन्वर्शन हुआ? जरा चेक कीजिए तो ये किसका कन्वर्शन हुआ? तो दिस इज द कन्वर्शन फॉर माइनस 35 डिग्री, 45 minutes and 30 seconds, which is nothing but the in the radian form minus 0.1987 pi radian. Move to the next question. Next, find the radian measure of the interior angle of regular polygon of 12 sides. किसमें निकालना है? रेडियन में निकालना है। किसका निकालना है? तो रेगुलर पॉलीगॉन का। पॉलीगॉन को कितने साइड्स देखे हैं? तो 12 साइड्स देखे हैं। और हमें कौन सा एंगल निकालना है? तो इंटीरियर एंगल निकालना। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अगर हम लोग इसको देखे बेटा, तो हमें इतना पता होने को होना कि जो रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है ना, द रेगुलर पॉलीगॉन हैज अ टोटल मेजरमेंट इज ऑफ कितने का? तो 360 डिग्री। इसका मतलब हमारा काम बन गया टू राइट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज कितना रहता है? इज 360 डिग्री। अगर ये 360 डिग्री है, देयरफॉर क्या? देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ किसका? ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन Who has, जिसको कितने साइड्स है? पॉलीगॉन ऑफ 12 साइड्स इज
क्या करेंगे हम लोग इसके लिए? 12 साइड्स के लिए निकालना है तो टोटल 360 का है, 12 पार्ट में डिवाइड हो गया, इसका मतलब 360/12 और 360/12 का मतलब होता है 30 डिग्री। इसका मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग द 12 साइड्स, ये कितने का हो गया? तो 30 डिग्री का हो गया। पर हमें ढूंढने के लिए क्या बोल रहा? तो इंटीरियर एंगल बोल रहा। एंड एज वी ऑल नो दैट एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, दिस सम इज इक्वल टू कितनी रहती है? तो 180 डिग्री। उसमें का एक्सटीरियर एंगल कितना है हमारे पास? सो 30 डिग्री प्लस इंटीरियर एंगल कीप एज इट इज एंड इज इक्वल टू कितना है ये? अगेन 180 डिग्री। सो प्लस 30 डिग्री चेंज ऑफ साइड बन जाएगा माइनस, सो इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना होगा? 180 माइनस 30 यानी आपको मिला 150। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 150। बट क्वेश्चन सेज अस दैट इज द इंटीरियर एंगल जो है वो किस में ढूंढना है? तो रेडियन में ढूंढना है। चलो रेडियन कन्वर्शन करा लेते। Therefore 150 डिग्री इन द डिग्री फॉर्म, दिस इज मल्टीप्लाइंग बाय पाई बाय 180, सो इट बिकम्स नाउ रेडियन। क्या क्या काट छाट करनी है वो काट छाट करा लीजिए। सो वी आर गेटिंग 0 गेट कैंसल, 3 5 15 and 3 6 18. It means 150 degree is equal to 5 pi by 6. Therefore, our finalized angle answer is each interior angle is कितने का हो गया? 5 pi by 6. Check once. क्या क्या दिया था उसको देख लीजिए बेटा। हमारे पास सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन कितना देखे था? इन द 360 डिग्री। देन ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, ये निकालने के लिए हमारा टोटल पॉलीगॉन कितने साइड्स का था? 12 साइड्स का। सो 360/12 किए वी गेटिंग अ 30 डिग्री। एज वी ऑल नो दैट एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल की टोटल कितनी होती है? तो 180 डिग्री। सो पुटिंग द वैल्यूज वी आर गेटिंग इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 150 डिग्री एंड 150 डिग्री देन कन्वर्टेड इनटू रेडियन, वी आर गेटिंग आवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन रिगार्डिंग टू अवर रियल लाइफ, डेली लाइफ, रूटीन लाइफ। सो व्हाट एग्जैक्टली क्वेश्चन इज? Find the degree and radian measure of the angle between the hour hand and the minute hand of a clock. अपने हाथों के बारे में बोला ही नहीं है। अपने हाथों के बारे में अगर बोले रहते तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ये मिनट हैंड आवर हैंड किसके पास रहते? तो घड़ी के पास रहते, यानी हमें टिक टिक करना है। ऑफ अ क्लॉक एट किस समय पे? 20 मिनट पास्ट 7। अभी 20 मिनट्स पास्ट 7 का मतलब कितना हो गया? तो 7:20 पे। क्या कोई फर्क पड़ता है घड़ी को जब हम लोग देखते हैं? तो मॉर्निंग के 7:20 और इवनिंग के 7:20 कि 7:20 को पता चला मॉर्निंग टाइम में घड़ी बड़ी फ्रेश मूड में है तो कुछ अलग ही अंदाज में रहे, और जब इवनिंग में है तो बेचारी वो भी मुरझा गई दिन भर घूमते घूमते तो अलग ही अंदाज में। ऐसा तो हो नहीं सकता। इट मीन्स इट मे बी अ AM or PM, it doesn't matter. We just find what exactly angle between the hands when the clock shows you a tick tick time 7:20. So move. Now let's see what exactly happened. सबसे पहले हम लोग एक घड़ी बना लेते हैं। So as we all know that आप सीधी बनाओ, उल्टी घुमाओ, गोल घुमाओ, या फिर रेक्टेंगुलर लो, ट्रायंगुलर लो, पेंटागन लो, ट्रायंगल लो, घड़ी किसी भी डायल की लो, बजते समय तो उसने ये ऐसा ही घूमना है। ठीक है। अभी कुछ फिक्स पॉइंट लग रहे होंगे मैडम कितना बचपन का बता रहे,
कुछ फिक्स पॉइंट आपके पास है, जैसे 12, 6, 3, 4, 9, ओके। इन बिटवीन में कुछ टर्म्स घूम रहे हैं। जब हम लोग ये बोल रहे हैं कि 7:20, इट मीन्स एग्जैक्टली आपका मिनट हैंड जो है वो 7 को थोड़ा सा क्रॉस करा चुका है, और सॉरी आपका आवर हैंड जो है वो 7 को क्रॉस करा चुका है, और मिनट हैंड जो है वो कहाँ पे सर्वाइव कर रहा, तो ऑन द 4। वो समय पे कितने डिग्री का एंगल वो ढूंढना है, आसान है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट, व्हेन द टाइम इज 7:20, जब वक्त कितना होगा 7:20, द मिनट हैंड कहाँ पे होगा, मिनट हैंड इज एट मार्क, किस मार्क पे होगा, इज एट मार्क 4, कितने पे होगा 4, एंड अवर हैंड कहाँ पे होगा, सो अवर हैंड इज एट 7। बात समझ में आ गए। अभी आपके पास 7 पूरे बज गए हैं, 8 बजने वाले हैं, और 7 और 8 के बीच में घड़ी जो 1 आवर का फासला तय करती है, वो 1 आवर के फासले को हम लोग बोलते हैं 60 मिनट्स। अभी 60 मिनट में से 20 मिनट्स पूरे हो गए, 60 मार्क्स के पेपर में 20 मार्क्स मिल गए। सेम वैसा ही 60 मिनट में से कितने मिनट्स पूरे हो गए, तो सिर्फ 20 मिनट्स पूरे हो गए, यानी हम लोगों ने सिर्फ 1/3 पार्ट कंप्लीट किया है 1 रोटेशन का। सो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे लिखा जाएगा, दैट इज our hand crossed, 1/3 part of 1 rotation, that is part of 7 to 8, which is nothing but the 1 rotation. Now ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। 7 और 8 के बीच में एंगल कितने डिग्री का, सो देयरफॉर एंगल बिटवीन 2 consecutive mark इज कितना, हमारे पास टोटल मेजरमेंट कितने डिग्री का रहता, तो 3 से 60, कितने मार्क में डिवाइड हो जाता है, तो 12 मार्क्स में डिवाइड हो जाता है। सो 360 अपॉन 12, इट मीन्स कितने डिग्री हुए, 30 डिग्री। इसका मतलब 7 और 8 के बीच का एंगल कितने डिग्री का हुआ, 30 डिग्री का। वो 30 डिग्री में से हम लोग कितना पार्ट उठा ले, तो 1/3 पार्ट उठा है। इट मीन्स देयरफॉर एंगल ट्रेस्ड by our hand in 20 minutes is 20 मिनट में आवर हैंड जितना ट्रेस करेगा वो निकालने के लिए क्या कर लेंगे हम लोग, 1/3 into 30, so that is equal to 10 डिग्री। नाउ कौन से 2 नंबर्स कवर हो रहे हैं, 4 and 7, so therefore next one, angle between which 2 mark 4 and 7 is कितने मार्क कवर हुए, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, यानी टोटल 3 मार्क्स। सो हम लोगों के पास हो जाएगा 3 into 30, that is equal to how much, so 90 डिग्री। अभी एग्जैक्ट बैठे बैठे, आप ऐसे भी लॉकडाउन में घर में ही हो, बैठे बैठे एक काम करा लेना, घड़ी की टिक टिक को ऑब्जर्व करना। जब 7:20 की बात आती है तो आपका आवर हैंड जो है वो 7 की पोजीशन को छोड़ के
थोड़ा सा आगे गया, बिल्कुल थोड़ा सा, और वो कितना थोड़ा सा आगे गया है तो 10 डिग्री आगे गया। Therefore required angle is 90 degree plus 10 degree which is equal to 100 degree। तो एंगल कितने डिग्री का हो गया? 100 डिग्री। ये इसको बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करना एंड सी द क्वेश्चन। देख लो एक बार फिर से। टाइम कितने बज के कितने मिनट पे है, घड़ी एग्जैक्टली क्या कर रही, व्हाट एग्जैक्टली वैल्यूज आर देयर, एंड एंगल कैसे क्रॉस किया हम लोगों ने, दो के बीच का एंगल कैसे निकाल लिए, ये सब बातों को देख लीजिए और ये उसका आगे का पार्ट। ठीक है, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। फिर से पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया, जिसका एरिया कितना दिया हुआ है तो 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, इज कितना है 20 सेंटीमीटर। तो हमें ढूंढना है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। वेरी सिंपल, क्या क्या यहीं पे निपटा लेते। देखिए बेटा, इसको आपको बोला गया है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, कितना है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, फिर से बार बार पढ़ो। ये देखो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना है तो 20 है, कंफ्यूज होना नहीं। उसके बाद हमें नेक्स्ट दिया है एरिया ऑफ सर्कल, कितना है एरिया ऑफ सर्कल, सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 25 पाई। अभी इसको एक एक को निपटाना है हमें। सबसे पहले ढूंढ लेते बेटा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर से। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला रहता ट्वाइस आर प्लस एस इज इक्वल टू 20। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल कितना देखे है तो 25 पाई देखे, पर एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या तो पाई आर स्क्वायर। कितना है यहाँ पे 25 पाई। बोथ साइडेड द पाई गेट कैंसल, so therefore r square is equal to 25, therefore the r is equal to only 5। समझे, ये वैल्यू किसकी हुई तो r की हुई। ये r की वैल्यू यहाँ पे डाल देते, so twice r यानी 2 into 5 plus s is equal to 20। 2 into 5 10, so 10 plus s is equal to 20। s is equal to 20 minus 10, value of s is equal to 10। These two are our values। s r is given, s is given। बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ। r की वैल्यू कितनी मिली थी 5, द वैल्यू ऑफ s कितनी मिली थी 10। s क्या है तो लेंथ ऑफ एन आर्क है, और लेंथ ऑफ एन आर्क के लिए आपके पास फॉर्मूला है बेटा r इंटू थीटा। r कितना दिया हुआ है तो 5, थीटा अभी भी पता ही नहीं। s की वैल्यू कितनी है तो 10, देयरफॉर थीटा की वैल्यू हो गई 10/5, वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन। हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर। And what is the formula for area of sector? 1/2 r square theta. But the value of r is equal to 5. It means 1/2 5 square into theta. It's a 2 radian. Now 2 get cancelled. 5 square is 25. It's a square centimeter. Get it my point? नाउ एक बार फिर से रिवाइज करा के देख लेते बेटा सभी चीजों को। सबसे पहले हमें दिया क्या था, पेरीमीटर देखे थी 20 सेंटीमीटर, उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल देखा था 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। हम लोगों ने पेरीमीटर कंसीडर किए 20 और पेरीमीटर का फॉर्मूला था ट्वाइस r प्लस s, फिर वैल्यू निकाल लिए अकॉर्डिंगली s इज इक्वल टू 10। बाय यूजिंग द एरिया ऑफ सर्कल हमें फॉर्मूला मिला, वैल्यू मिली r इज इक्वल टू। नाउ पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज
In this, we are getting the length of an arc is equal to S is equal to R into theta. So therefore, theta is equal to 2 pi. And by using that 2 pi, we are finding area of sector. This is all about our first unit from your textbook of 11th standard prescribed by Maharashtra State Book. Okay. So see. आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ सेम वैसा ही है, आप इसको प्रैक्टिस के तौर पे करिएगा। पेरीमीटर यहाँ पे देखिए है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 56 एंड एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 64 पाई। एरिया गिव्स अस द वैल्यू ऑफ आर, पेरीमीटर गिव्स अस द वैल्यू ऑफ थीटा, एंड बाय यूजिंग दिस बोथ द टर्म फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। Now next part, the next topic हम लोग देखते हैं in the next video.